नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हमारी लड़ाई इस ताकत के खिलाफ है जो अवाम के हुकूक को पामाल कर रही है। वायनाड में जलसे-आम से प्रियंका गांधी का खिताब। हमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, मोहन भागवत का मशवरा। कहा 2 से कम शराय तौलीद माशरे के खात्मे का सबब बनेगी। सख्त तरीन सिक्योरिटी में सैरुकनी अदालती टीम जांच के लिए शाही जामे मस्जिद पहुंची। इलाके में हालात हनूस कशीदा। दिल्ली में निज़ाम कानून पूरी तरह तबाह, खवातीन से लेकर कारोबारी तक हर शख्स खौफजदा। केजरीवाल ने अमित शाह और मोदी सरकार को बनाया निशाना। तूफान फेंगल ने तबाही मचा दी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। चेन्नई में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल, ट्रेन और हवाई खिदमात मुअत्तल, लाखों अफराद बेघर। नई सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि आज लड़ाई इस क़ुव्वत के खिलाफ है जो लोगों के हुकूक को कमज़ोर करके उन्हें कुछ ताजिर दोस्तों के हवाले कर रही है। इन्होंने वायनाड के मानंतवाड़ी में एक जलसेआम से खिताब करते हुए आज अहम अपनी कौम हिंदुस्तान की रूह के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वायनाड में अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे मुल्क की बुनियाद कायम इदारों को तबाह बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इन्होंने वायनाड के लोगों के साथ रहने और इनकी ज़रूरियात के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का वादा किया। Particularly one farmer called Johnny who had a big debt of many lakhs and he was having great difficulty growing his crops because monkeys used to come and eat them, the rains were destroying them. And when I asked him, what are you going to do? You must be very disturbed. He smiled and he said to me, doesn't matter. Next year I will repay it all, everything will be good. So I learned from him that to have a positive attitude, no matter what difficulty you're facing, to be happy and smile and believe that you will be able to face that problem. I met a beautiful young woman who ran her own homestay, also facing difficulties because after the landslide, less tourists were coming. I saw the way she was with her mother, more worried about how she is going to pay the staff working for her than how she is going to manage the next day. And when I met that lady, she had with her her mother, who was an older lady, and another lady who was working with her for the last 10-15 years. And as a stranger, a person who met her for the first time, I noticed how she treated both with equal respect. Before the campaign, when I had come here to visit the victims of the landslide, I met a young boy called Muhammad Hani, who lost every single member of his family except his grandmother. തൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാവരെയും ആ പയ്യന് ആ മണ്ണിടിച്ചിൽ അന്നത്തെ ദുരന്തത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. When I met this boy, he was brave, but he was also broken. ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് തകർന്നു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. For 6 hours during the landslide with the flooding waters, he had held on to his mother trying to save her life. And after that, he had seen his mother being drowned, being washed away by the waters. അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ സ്വന്തം അമ്മ ഒഴുകി പോകുന്നത് മുങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ കുട്ടി. But when I came back for the election campaign and I was sending him a message asking him what are his hobbies, because I thought after the election I'll send him something. This young boy who had lost everything just 4 months ago sent me a message back saying, my hobby is helping those who are suffering. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ ആൺകുട്ടി 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആൺകുട്ടി എനിക്ക് എന്താ മെസ്സേജാണ് തിരിച്ചയച്ചതെന്നറിയാവോ? എൻ്റെ വിനോദമെന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ സഹായിക്കലാണ്. അതാണ് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. Not only is he brave, but he has a heart of gold. He is compassionate.
आरएसएस सरवर मोहन भागवत ने शराय पैदाइश में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो माशरे जिनकी पैदाइश की शरह 2 से कम हुई हो वो ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब को बरकरार रखने के लिए 2 से ज़ायद बच्चों की ज़रूरत है। भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा, जदीद आबादियाती साइंस के मुताबिक अगर किसी माशरे की शराय तौलीद 2 से नीचे चली जाए तो माशरा दुनिया से ख़त्म हो जाता है, चाहे कोई बहरान ना हो। इसलिए हमें अपनी शराय तौलीद को कम होने से रोकना होगा। यूपी हुकूमत ने संभल मामले की जांच के लिए 28 नवंबर को तश्कील अदालती कमीशन को नोटिफिकेशन की तारीख से 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने की हिदायत दी। 3 रुकनी अदालती कमेटी तशद्दुद के वाक़यात की जांच के लिए आज शाही जामे मस्जिद संभल पहुंची। 24 नवंबर को संभल के शाही जामे मस्जिद पर सर्वे की कोशिशों के खिलाफ अवाम बरहम हो गए थे, जिसके बाद फूट पड़ने वाले तशद्दुद में 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत हुई थी। कमीशन की ये टीम 4 नुकात पर जांच करने वाली है। इसके तहत दर्ज झेल नुकात शामिल हैं। क्या तशद्दुद किसी साजिश के तहत मनसूबाबंद थी? क्या पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम ठीक नहीं थे? किन वजूहात से और किन हालत में तशद्दुद हुआ? उसकी वजह क्या थी? आगे मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? दिल्ली में ख़राब निज़ाम क़ानून को लेकर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में खौफ का माहौल है, यहाँ की ख़वातीन खौफज़दा हैं, राजधानी गैंगस्टर्स के कब्ज़े में है और यहाँ का निज़ाम क़ानून पूरी तरह से दरम भरम हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर कारोबारियों के पास तावान के लिए फ़ोन कॉल आते रहते हैं। कोई अगर नहीं सुनता है तो अगले ही दिन उसके घर या दुकान के बाहर फायरिंग की जाती है। वो एक पर्ची भी छोड़ जाते हैं जिसमें धमकी दी जाती है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एमएलए और दिल्ली के रियासती वज़ीर नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें साल गुज़श्ता भत्ताखोरी के मुबैना इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने रुकन असम्बली नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद इल्ज़ामात आयद किए। केजरीवाल का कहना था कि बालियान को गैंगस्टर कपिल सांगवान की धमकियों का सामना था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए खुद उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। उनका मजीद कहना था कि गैंगस्टर चाहते थे कि बालियान उनके कहने पर लोगों से ज़बरदस्ती रकम वसूल करें, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैं श्री नरेश बालियान जी से मिलने के लिए आया था यहाँ पे। मैं उनका एडवोकेट हूँ, काफ़ी सालों से मैं उसका एडवोकेट हूँ, उनका एडवोकेट हूँ। तो यहाँ पर जब आप पहुँचे तो क्या जानकारी दी गई आपको? मुझे जानकारी अरेस्ट कर लिया है फिर डिटेन ही है? सर कंफर्म नहीं है ये। एक साहब तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया है, दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं जी अरेस्ट नहीं किया है। मैंने कहा है जी मुझे मिलवा दो या मुझे ये जानकारी दे दो कि स्टेटस क्या है, एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो। कुछ बताने को तैयार नहीं है ना एसएचओ साहब। मैंने कहा एसएचओ साहब से ही मिलवा दो या उनके सीनियर से मिलवा दो, एसीपी साहब डीसीपी साहब से मिलवा दो, उससे भी मिलवाने के लिए खुश नहीं है। तो सर ये जो केस चल रहा है 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या केस है सर? और उसी केस के रिगार्डिंग उसमें सर ये एफआईआर की कॉपी आने के बाद, डिटेल आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। अभी तो मुझे ही नहीं पता तो अक्यूज, क्योंकि जब अक्यूज को बुलाए मिलने के लिए कहा जाएगा कि किस क्राइम में किन सेक्शनों में इसको अरेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देन ओनली द स्टेटस कैन बी क्लियर। तो 1 साल से सर आपको क्या एफआईआर की कॉपी नहीं मिली या फिर आपने कोर्ट से लेने की कोशिश? सर एक एफआईआर में कई अक्यूज हो सकते हैं और उनके पर्टिकुलर डिफरेंट रोल हो सकते हैं। ये तो केस टू केस अलग अलग है ना। अच्छा सर एक चीज़ और है कि जो ऑडियो सामने आए उसमें एक गैंगस्टर के साथ उनकी बातचीत हो रही है, उनके एक साथी हैं उनकी भी बातचीत हो रही है, तो ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे सर? उसका मुझे कोई अभी अपडेट नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो कल बताया इन्होंने कि अरेस्टिंग के बाद सर पेश करेंगे कोर्ट में? सर अरेस्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको पेश तो करना ही पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट में, 24 आवर्स में करना पड़ता है वो तो। क्योंकि पुलिस का ऑफिशियल बयान आ गया अरेस्टिंग को लेकर। मेरे को तो बता नहीं रहे हैं ऑफिशियली, अभी आपके सामने अभी दोबारा पूछ लेता हूँ मैं। यदि अरेस्ट कर लिया है तब भी एक बार मिलवा देते, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वैसे भी। एक अफसोसनाक वाक़े में 30 नवंबर को ग्रेटर कैलाश में दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर एक माए यानी लिक्विड फेंका गया था। उस पर रद्दमल जाहिर करते हुए दिल्ली के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारा पहला शक बीजेपी पर पड़ता है। ये शख्स अशोक कुमार है और हमने उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल तक रसाई हासिल कर ली है। वो पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम और बंसूरी राज वगैरह को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि हमें उसके प्रोफाइल पर उसका बीजेपी शिनाख्ती कार्ड भी मिला है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के लोग अब शरंगेजी पर उतर आए हैं। ग्रेटर कैलाश
विधानसभा के सावित्री नगर इलाके में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा थी और हजारों की तादाद में लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको दुआएं देने के लिए अपने घरों से नीचे उतर के गलियों में खड़े हुए थे। अरविंद जी सबसे मिलते हुए जा रहे थे और उसी तब समय एक आदमी उनके ऊपर हमला करता है। क्योंकि मैं उनके बिल्कुल साथ था, मेरी ये जैकेट भी अभी भीगी हुई है, हल्की हल्की इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर है। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी, सूंघा हमने और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद थे, जनता के लोग मुस्तैद थे। स्पिरिट तो फेंक पाए मगर आग नहीं लगा पाया अरविंद केजरीवाल जी को। आज दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बहुत गंभीर बात है। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं दिल्ली वालों के बीच, पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है। और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी। गर्दावी तूफान फेंगल का जबरदस्त असर तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखने को मिल रहा है। इन रियासतों में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। बारिश के सबब राजधानी चेन्नई में तो सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं और यहाँ के हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा है। तूफान की वजह से हुई शदीद बारिश और तेज़ हवाओं ने लैंडस्लाइड से पहले चेन्नई में उड़ान और ट्रेन खिदमात को रोक दिया है। इस तूफान के सबब एक शख्स की मौत की भी इत्तला है। राजधानी शहर में कई अस्पतालों और घरों में पानी दाखिल हो गया है। तमिलनाडु के कई ज़िलों में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और हफ्ते को इलाके में आने वाले ताकतवर गर्दावी तूफान से पहले सैकड़ों लोगों को महफूज पनाहगाहों में चले गए हैं। चेन्नई हवाई अड्डे पर पानी भर जाने के सबब कई परवाजें रद्द होने से सैकड़ों मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। हवाई अड्डे पर आमदरफ्त इतवार सुबह 4 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई है। खलीज बंगाल से उठा गर्दावी तूफान फेंगल तमिलनाडु पुडुचेरी साहिल को पूरी तरह से पार कर चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बंगाल के जुनूब मशरिक़ में फेंगल तूफान गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ गया है और रात 9:30 बजे खलीज बंगाल के जुनूब मगरिब में, शुमाली तमिलनाडु के साहिलों के करीब और महाबलीपुरम के जुनूब मगरिब में और चेन्नई के जुनूब मगरिब से 30 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में मरकूज़ था। पुडुचेरी में शदीद बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क की मुमताज़ शटलर साइना नेहवाल आज पटना में नशामुक्त बिहार की मुहिम के तहत मुकर्रर की गई मैराथन में शिरकत की। इन्होंने कहा कि मेरी इस दौड़ में शामिल होने का अहम मकसद यही है बिहार और मुल्क में नशे की लानत के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करूँ। बिहार में महकमे नशाबंदी व एक्साइज ने इस मैराथन का एहतमाम किया था। मैराथन में सैकड़ों की तादाद में तुलबा और दीगर शहरियों ने शिरकत की। First of all, I would like to thank the marathon and SBI people for inviting me here. आज I think इतना अच्छा लगता है जब when I see so many people participating in the marathon.
और इतने अच्छे कॉज के लिए है ये मैराथन। एंड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं यही बोल सकती हूँ, स्टे फिट। बट टुडे जहाँ इतने सारे लोगों को देख के मुझे अब वो बोलना एक्चुअली शायद बनता नहीं, क्योंकि सब लोग फिट रहना चाहते हैं एंड आई कैन सी सो मेनी पीपल पार्टिसिपेटिंग इन इट। बस यही बोल सकती हूँ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडीज एंड बाकी सब आई थिंक अगर लाइफ अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट सो मेनी पीपल कमिंग आउट हियर और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू पटना फॉर इनवाइटिंग मी और हैविंग मी हियर। नशा मुक्त बिहार इनिशिएटिव के लिए ये मैराथन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत ही अच्छा कॉज है, नशा मुक्त भारत होए तो और क्या चाहिए, यू नो कंट्री में हमें जितना फिट रहेंगे उतना बेटर रहेगा। तो इतने अच्छे कॉज के लिए आज इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर और भी अवेयरनेस बढ़ेगा इसके बारे में। तो बहुत अच्छा कॉज है एंड मैं उनसे जुड़ी तो मुझे आई एम थैंकफुल टू दैट। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हमारी लड़ाई इस ताकत के खिलाफ है जो अवाम के हुकूक को पामाल कर रही है। वायनाड में जलसे-आम से प्रियंका गांधी का खिताब। हमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, मोहन भागवत का मशवरा। कहा 2 से कम शराय तौलीद माशरे के खात्मे का सबब बनेगी। सख्त तरीन सिक्योरिटी में सैरुकनी अदालती टीम जांच के लिए शाही जामे मस्जिद पहुंची। इलाके में हालात हनूस कशीदा। दिल्ली में निज़ाम कानून पूरी तरह तबाह, खवातीन से लेकर कारोबारी तक हर शख्स खौफजदा। केजरीवाल ने अमित शाह और मोदी सरकार को बनाया निशाना। तूफान फेंगल ने तबाही मचा दी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। चेन्नई में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल, ट्रेन और हवाई खिदमात मुअत्तल, लाखों अफराद बेघर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।